Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are covering daily news through various videos. So in this video, we will cover news of 27th September and 28th September. First news is RBI says that the proposed positive pay system shall be introduced from 1st January 2021. NPCI shall develop the facility of positive pay in CTS and make it available to participating banks. Now what is CTS? Check Truncation Scheme. ये वीडियो कहाँ पर अवेलेबल है? 190 वीडियो की प्लेलिस्ट में. इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो 190 वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको ध्यान से देख लीजिए. बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी. क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है वो भी वहां पे कवर्ड है. समझ रहे हैं? तो अब जब कोई न्यूज़ आती है हमें समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें उसके बेसिक्स नहीं पता. हम डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं. तो अब हम कॉमर्स फील्ड में आ रहे हैं तो हमें अपनी बैकग्राउंड क्या बनानी है? कॉमर्स. आसान तरीका क्या है कि जहाँ पर आसान शब्दों में वो व्याख्या मिल जाए. और ये मैंने प्रयास करके आपको 190 वीडियो की फॉर्म में दिया है जो कॉमन आदमी की लैंग्वेज में मैंने बहुत क्रिटिकल चीज़ें समझा दी हैं आपको. उसको देखिए. दूसरी न्यूज़ है फाइनेंस मिनिस्ट्री is likely to provide capital support from 20,000 crore fund approved by Government of India. The fund infusion be done if required in October-December quarter. Now what is this capital? Government of India is owner of public sector bank. Now it is the duty of the owner to provide capital as and when business grows. So when they provide capital, it is not charity, it is business. For every business organization, capital is an ongoing requirement. You must have seen Reliance is raising capital. Many companies are raising capital. So this is nothing new. Sometimes some candidates are confused, government is giving money. It is not giving money, it is taking more ownership. And once bank is in profit, they pay the dividend to the government. And if we see from the date of nationalization till today, bank might have given more dividend to government than the capital they have received from government. So banking is not a losing business. If government is providing 20,000 crore rupees as capital, that means they are taking more ownership in banks. And they will get more profit in future when banks will generate abnormal profits. And these are the phases. Some years you earn less profit, some years you earn more profit. So next news is impact of COVID-19 on BC will be assessed by Reserve Bank of India. BC means business correspondents. So the corona has hit the business correspondent model also. So now RBI want to assess what is the impact. Next is government is aiming to implement all 4 labor laws in one go by December. So government has recently approved new labor laws. So they want to implement by December itself. So for your convenience, we have various playlists. One is July 2020, another is August 2020, third is September 2020. So you can watch some videos per day from these news videos. It will help you a lot. Second important thing is knowledge about current affairs. For every exam, maybe banking, maybe SSC, maybe railways, maybe insurance, you have to learn current affairs. So I have identified a good source of current affair for you. Link I have provided in description and comment column. Subscribe this current affairs and start reading from there. It will improve your knowledge. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब आज हम कवर कर रहे हैं 27 और 28 सितंबर की न्यूज़. पहली खबर है कि आरबीआई ने ये कहा है कि जो प्रपोज पॉजिटिव पे सिस्टम है वो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा. और कौन लागू करेगा? एनपीसीआई. और किस पे करेगा? सीटीएस प्लेटफॉर्म पे. अब सीटीएस क्या है? चेक ट्रंकेशन स्कीम. एनपीसीआई क्या है? ये सब 190 वीडियोस की प्लेलिस्ट में कवर्ड है.
तो यदि आपने वो वीडियोस देख ली तो आपको ये न्यूज़ एकदम में समझ आ जाएगी, और आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप CTS वर्ड आते ही रुक गए कि अब क्या करूं, NPCI आता ही आप रुक गए अब मैं क्या करूं। इसीलिए बार बार मैं ये आपको कहता हूं कि ये महत्वपूर्ण है कि आप 190 वीडियो में से 10 वीडियो रोज देख के 15-20 दिन के अंदर अपनी नॉलेज एक्वायर कर लें, ताकि आपको सारी न्यूज़ समझ आ जाए। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे और न्यूज़ में से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए उसकी महत्ता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको वो दी हैं वीडियोस। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आता, ये न्यूज़ आ गई वो लगता है ओ सरकार पैसा लगा रही, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो बिजनेस है उसके अंदर जो उसका मालिक होता है उसको पैसा लगाना ही होता है। मान लो रिलायंस है तो रिलायंस में लगातार कैपिटल बढ़ रही है ना, तो पैसा लगा रहा है कोई ना कोई। तो अगर बैंकिंग का बिजनेस बढ़ना है तो बैंकिंग के अंदर कैपिटल भी और चाहिए। अब वो तो ये मालिक दे सकता है या पब्लिक दे सकती है, तो यहाँ पर कुछ पैसा पब्लिक से लेंगे, वो पब्लिक इशू लाके, FPO लाके, IPO लाके, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से बैंक का FPO है। अभी तो सबका पब्लिक सेक्टर में तो FPO ही आएगा, कहीं QIP के थ्रू भी रेस कर रहे हैं, और जो सरकार है वो भी लगा देगी उसके अंदर, क्योंकि ये तो मुनाफे का बिजनेस है। बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहते हैं। अगर हम जब से देखेंगे सरकारी क्षेत्र के बैंक बने हैं तो कुल डिविडेंड जो इन्होंने सरकार को दे दिया होगा वो कई ज़्यादा है जो कैपिटल सरकार ने इस पर लगाई है। और जब ये पब्लिक इशू में अपना हिस्सा बेचते हैं तो जो 10 रुपये में खरीदा हुआ शेयर है सरकार का, वो कई बार 800-800 रुपये में भी पब्लिक को बेच जाते हैं, तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। तो कोई ऐसा चैरिटी नहीं है अगर सरकार 20,000 करोड़ रुपया ऑनरशिप लेने के लिए दे रही है। कई लोग गलत समझते हैं, इसलिए यहाँ मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसके बाद ये है कि इम्पैक्ट क्या हुआ BC पे, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे, कोविड के दौरान। इसकी समीक्षा करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा खबर है कि सरकार चारों लेबर लॉ के नियम जो रिसेंटली पास किए हैं एक ही मुश्त के अंदर दिसंबर में लागू कर देगी इंडस्ट्री में। तो अब आपके लिए मैंने क्या कर दिया, जुलाई की न्यूज़, अगस्त की न्यूज़ और सितंबर की न्यूज़, 3 प्लेलिस्ट बना दी। उसका लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। 5 वीडियो रोज की देख लीजिए, सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी आपकी। इसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो। इसका अच्छा सोर्स क्या हो ये मैंने ढूंढ के आपको दे दिया। इसको सब्सक्राइब कर लो, करंट अफेयर इंप्रूव करो, आपको हर एग्ज़ाम में कामयाबी मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।